जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, मैं बचपन तो ही गुरु नानक देव जी दी भगत रही हाँ। गुरु नानक देव जी दी और हनुमान जी और विष्णु भगवान दी पूजा करदी रही हाँ। और इन दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੇਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਚ, ਸਰੀਰ ਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੰਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थोड़े दिनों तो थोड़े दिनों तो मैसेज आ रहे सी बार-बार, फिर बार-बार मैसेज आ रहे सी तीसरा कि तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे परिवार ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿ ਤੇ ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਖੂਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਖੂਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਖੂਨ ਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਪੜ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਬਿਖਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਐਸੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੰਨਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੇਰੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੇਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੋਲ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਆਈ ਰਸੋਈ ਕੋਲ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਕੈਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਾਈਕ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਏ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਪਤ ਸ਼ਤਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਟੋਨੇ ਟਟਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ।
है ना गुरु जी, जो जलन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैं आप जी कहते हो कि यार तू मैनू भोग लगांदी है, मैं खुश हाँ तेरे तो, मंत्र जाप भी करनी है सवेरे शाम आप जी दा गुरु जी, ओम नमः शिवाय दा, शिव जी सदा सहायता गुरु जी सदा सहायता 108 सवेरे शाम पाठ करनी है आप जी की किरपा दे नाल गुरु जी। आप करांदे हो, अमृतवेला भी करनी है, आप करांदे हो सब कुछ सच्चे पातशाह जी। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਕੜਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਦ ਹੀ ਚ ਗਲਾ ਦਰਦ, ਦੋ-ਦੋ में ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗਲਾ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਕਦੇ ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਟੋਨੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਬਲੈਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਗੰਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀ ਦਾ ਸਮੈਲ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੜੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਸੀ ਘਰ ਨਾਲੀ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੇਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। मैं तेरे नाल हाँ मेरी बेटी। तो सो शुक्राना गुरु जी महाराज जी। और बस अपनी बेटी ऊपर एवें ही किरपा बनाए रखना, साढ़े ऊपर जो भी बंधन जो करता है गुरु जी, और जो भी कोई टोना टोटका करता है ओहदे ऊपर ही जाए। और साढ़े जो भी पितर बनता है, पितर देवता बनता है, जो सारे बंधन बन देंदा है, साढ़े कामकाज बन देंदा है, साढ़े कारोबार बनता है, जो साढ़े पढ़ाई दे विच बंधन करता है, वो सब तो खोल दो गुरु जी, है ना। ते ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਹੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। बुरी नज़र किसी दी हो तो उत्थों ही रोक देना गुरु महाराज जी। आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है, और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी उसको एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य फल पाठ के बराबर देते हैं, करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल प्रदान करते हैं संगत जी। तो इसलिए शुक्राना ज़रूर करें, हर वेले करें, हर घड़ी शुक्राना करें, क्योंकि शुक्राना ही वो शक्ति है जो हमारे पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है संगत जी, ख़त्म कर सकती है। गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा एक एक शुक्राना तुम्हारे हर संकट को काटने की ताकत रखता है, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और संगत जी शुक्राना ही हमारी हर परिस्थिति का हवाला हमारे गुरु पिताजी के सामने रख देता है संगत जी। गुरु पिताजी से हमारे तार जुड़े रहते हैं मन के, जो कि हमारा शुक्राना जो है ना हमारी सब स्थिति बता देता है हमारे गुरु पिताजी को। गुरु पिताजी कहते हैं कि संगत जी देखो, कभी कहते भी हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तेरा चेहरा बार बार सामने आ रहा था, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि तुम शुक्राना करो। इसलिए संगत जी शुक्राना करें ताकि आपके तार हमेशा अपने मालिक से जुड़े रहें, आप उनके सानिध्य में रहें। और संगत जी शुक्राना करने से तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, आप खुद महसूस करेंगे। जो शुक्राना करना सीख जाता है ना संगत जी, परिवर्तन उसके साथ खड़ा होता है। आपकी स्थिति कैसी भी हो परिवर्तित जरूर होगी, आप विश्वास रखना उस मालिक पर, क्योंकि संगत जी कितना भी घना अंधेरा हो, शुक्राना सारे अंधेरे काट कर आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। शुक्राना संगत जी मालिक का धन्यवाद ही नहीं है, शुक्राना जीवन शैली परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल हमारी दिनचर्या सब कुछ में परिवर्तन लाता है।
शुक्राना हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर आता है संगत जी। और जब हम अपने आप को सुधारते हैं ना संगत जी, कहते ना बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इंसान शुक्राना जो है ना हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करता है संगत जी। शुक्राना हमें प्रेम जागृत करता है, हमारे अभिमान को ख़त्म करता है, हमारी मैं को ख़त्म करता है शुक्राना। क्योंकि संगत जी जिसको देना आ गया उसमें ये अवगुण रहते ही नहीं है। शुक्राना हमें देना सिखाता है, दिल से, प्यार से, भाव से हमें भाव जागृत करता है शुक्राना। शुक्राना हमें नीवा होकर चलना सिखाता है, शुक्राना हमें पाने का अधिकारी बनाता है। तो संगत जी देखो इस शुक्राने से कितने बड़े बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। तो क्यों ना अपने आप को हम शुक्राने से जोड़े और हर पल अपने उस मालिक का, उस दातार का शुक्राना करते रहें, ताकि उसकी छत्र छाया हम पर सदैव बनी रहे, उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे संगत जी। तो सब जिस तरह हमारा खाना पीना, सोना, हंसना, रोना सब कुछ ज़रूरी है, उसी तरह संगत जी हर पल हमें शुक्राना करना ज़रूरी है। उसकी रहमतें हम पर हर समय बरसती हैं, तो हमें भी शुक्राना अपना हर समय करना चाहिए संगत जी। हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक की आपने मुझे शुक्राना करना सिखाया, और शुक्राना इस बात का भी कि आपने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे सेवा ली मेरे मालिक, शुक्राने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना बड़ा सौभाग्य अपनी बेटिया के हिस्से डाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से जो खुशियाँ तूने मार दी, उन सब खुशियों का हिसाब मेरे पास है। मैं तेरे घर में खुशहाली की ऐसी बारिश करूंगा कि तेरे बच्चों की हर छोटी छोटी ख्वाहिश, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाया करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का हाथ, ऐसे पिता का हाथ है हमारे सर पर, जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश से पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, ये समझ कि तेरा समय आ गया। बस नीवा होकर चली, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जब मेरे आप जैसे पिता मिले। आपने मुझे करोड़ों की भीड़ में चुना है मेरे बाबा। मुझ जैसे बदनसीब के सर पे आपने अपने ममता भरे हाथ रखे और मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे और तेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ बहुत पहले रख चुका हूँ। अब किसी भी चिंता या तनाव को मन में मत आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। हर बार तू परेशान होता है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरे हाथ जोड़ने से पहले मैं तेरे मन की हर पुकार सुन लेता हूँ। धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना कि तेरे गुरु ने तुझे बुलाया है। जिसका मैं कल्याण करना चाहता हूँ उसी के पास मेरा निमंत्रण पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम पार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ। आपने मुझे अपने श्री चरणों से लगाया, मुझे संगत चुना है बाबा, संगत चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य का ताज मेरे सर पर रखा है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने गुरु पिताजी से बातें कर रही थी। संगत जी पता नहीं क्या है, देखो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता उसको बहुत। मैंने इसका प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया संगत जी, फिर भी नहीं पढ़ती, समझ में नहीं आता। पूरा साल निकल गया, उसने जो है कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस फ़ोन चलाना, गाने सुनना, बस उसका दिमाग। मैंने कल गुरु पिताजी से उसके लिए अरदास करी है। सब जानते कि औरत का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है संगत जी, कोई मजाक बात तो नहीं है। आजकल औरतों का जीना वैसे ही दुश्वार कर रखा है। कितना भी अच्छे परिवार में शादी कर दो, कितना भी देखभाल कर शादी कर दो, संगत जी हम औरतों को मिलता क्या है पता नहीं। घर परिवार कैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एक वहाँ की 1000 टेंशनें होती हैं। उसको कह के रखा संगत जी कि कुछ कर ले, कुछ पढ़ ले, कुछ सुनने को राज़ी नहीं, कुछ करने को राज़ी नहीं। बस मैं अपने गुरु पिताजी से उसी के बारे में बात कर रही थी कि और बाबा जी शरीर सेहत उसकी बिगड़ती जा रही, दिनों दिन संगत जी मोटी होती जा रही है, मानती नहीं है। जो मना करो वही करती है, जो मना करो वही खाती है, खूब मीठा खाती है संगत जी, मानती नहीं है। कुछ भी मीठा रखा होता है सबसे पहले उठा के खा जाती है। पता नहीं इसको कितनी क्यूरियोसिटी होती है मीठा खाने की, ये सब करने की संगत जी, वो मानती नहीं है। और जो भी कुछ जैसे उसके हेल्थ के लिए बना के रखती हूँ, कुछ पानी वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ
जो तेज पत्ता या कुछ भी हल्दी वगैरह डालकर, तो वो भी संगत जी पीती नहीं है, उसको भी रखा रहने देती है। इतनी आलसी है, कुछ भी खुद करके राजी नहीं है। जब मैं खुद करके देती हूँ तो वो भी राजी नहीं है। एक माँ की चिंता तो देखो संगत जी फिर बढ़ती ही जाती है। मैं कल अपने पिताजी से इसी के बारे में बात करी थी, गुरु पिताजी से। फिर संगत जी रात में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है बच्चों को लेकर, क्या करें, एक माँ ही सोचती है बच्चों के बारे में और कौन सोचता है संगत जी। तो फिर बस गुरु पिताजी से बातें कर रही थी और गुरु पिताजी का फिर मैसेज आया कि घबराया ना कर छोटी छोटी बातों पर, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ साक्षात। बच्चों की इतनी टेंशन मत ले, उनका भविष्य मैंने बहुत खूबसूरत लिखा है। तू मुझे अपने दुख सुख का साथी मानती है तो एक बार हंस कर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख ले। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आप ही तो हो जिसे मैं अपना दुख सुख, अपने हर पल, अपनी खुशी गम सब कुछ आपके साथ बांटती हूँ बाबा। मेरा और कोई नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सच मानो तो मैंने अब किसी से बोलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है संगत जी, जितना मैंने सच बोला किसी के सामने मुझे उतना ही झूठा समझा गया। जितना मैंने अपनी हकीकत लोगों को बताई ना संगत जी, उतना ही संगत जी लोगों ने मेरा मखौल बनाया। और अब मैंने किसी से भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैं तो सब बातें अपने बाबा से बोलती हूँ। मेरे बाबा जी ही मुझे सब रास्ता निकाल के देते हैं, वही मुझे सब बताते हैं। तो शुक्राना। और संगत जी सच बताऊँ, इस निर्मोही संसार में किसी से भी ना प्यार की अपेक्षा मत करना। कोई सच्चा प्यार नहीं देने वाला। मुझे तो सबके हिस्से का प्यार मेरे गुरु पिताजी दे देते हैं। अब मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होती संगत जी। हाँ ठीक है, जो है सो है। मालिक ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो कर्म करने आए वो तो करने ही है। उन रिश्तों को भी संभालना ही है, औपचारिकता ही सही वो भी निभानी ही है। लेकिन सच्चा रिश्ता मेरा सिर्फ मेरे मालिक के साथ है, मेरे गुरु पिता के साथ है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ उनको पाकर। शुक्राना। और मेरा सौभाग्य है जो मैंने अपने बाबा जी को, मेरे बाबा जी मेरे जीवन में मेरे पिता बनकर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे रिश्तों की कमी पूरी कर दी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते कि बेटा तेरी मंजिल अब एक दिन दूर है, जो चाहिए वो मांग ले। बाद में मत कहना कि गुरु पिताजी कि मेरा काम नहीं हुआ। अब चल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। मुझे जो चाहिए था वो तो मैंने आपसे पहले मांगा बाबा। मुझे तो मेरे बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनकी भक्ति चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए, उनकी तड़प चाहिए, बस यही कुछ चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मैं छोटे मोटी चीज़ों को नहीं मांगती। इससे बड़ा किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता बाबा। मुझे यही चाहिए अपने लिए, हाँ, और आपके नाती नातियों के लिए वो आप खुद देख लेना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो, नेगेटिविटी को लेकर एक मैसेज बाबा जी का आया कि बेटा जो भी तेरे खिलाफ जाल बुना जा रहा था उसे मैंने और माँ ने मिलकर काट दिया। कोई भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति तेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तू बस अपनी भक्ति में लीन रहे। मेरा सुरक्षा कवच तेरे परिवार के चारों ओर है। जा, जीत तेरी ही होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जिसके पास ऐसे पिता होना, उसके बच्चे किसी भी फील्ड में हार नहीं सकते बाबा। उसकी तो जीत निश्चित है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते कि आंटी आज आ क्या तेरा नंबर, मैंने आज तेरे नाम की पर्ची निकाल दी। 1 अप्रैल की पर्ची निकाल दी है तेरे नाम की, और तुझे खुद के घर की चाबियाँ भेजने वाला हूँ। बस तो शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, मुझे घर ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे दुखों का अंत मार्च है और शुरुआत अप्रैल। अंत कठिन होगा लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पिताजी महाराज, अंत अच्छा हो या शुरुआत अंत बुरा हो या शुरुआत अच्छी हो, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप हर पल में हमारे साथ हो, हमारे पास हो। हमारा हर पल अच्छा ही अच्छा है बाबा। वो दुख भी हमारे लिए सुख से बेहतर है जिसमें आप हमारे साथ खड़े हो मेरे गुरुजी महाराज, और वो सुख भी दुख से बदतर है जिसमें आप नहीं हो हमारे साथ। इसलिए बाबा, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, आप सदा अपनी बिटिया के साथ रहना।
सदा अपनी बेटी के साथ रहना। आपका साया सदा मेरे सर पर रहे मेरे गुरुजी महाराज। अपने इस परिवार के साथ रहे, बस यही मेरी विनंती है, यही मेरी प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करो मेरे बाबा। आपसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे मालिक, कुछ भी नहीं, ना सुख ना दुख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुन तो शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी आज तेरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। तेरे परिवार का भाग्य मैं खुद लिख रहा हूँ। आज से तेरे परिवार की दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होगी। बस तू शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, हम सबको इतनी खुशियाँ, इतनी तरक्की ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोई साथ हो ना हो, कोई मुझे समझे ना समझे, मेरे पिता मुझे समझते हैं ना, कोई मुझे इज्जत दे ना दे बाबा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका साथ काफ़ी है बाबा, आपका प्यार काफ़ी है बाबा, मेरा सब कुछ आप हो बाबा। वो भजन है ना संगत जी, गुरु जी महाराज का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोका दे सहारे लख होंगे, मेरा तो सहारा एक तू। लोका दे प्यारे लख होंगे, मेरा तो प्यारा एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही अपने पिताजी से मांगूंगी जो हमेशा मांगती। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे बाबा, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बा शुक्राना बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको गए तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। अच्छा है आपकी, क्या पढ़ाई करूँ मैं। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी महाराज, हमेशा इतने प्यार से ख्याल रखते हो गुरुजी महाराज, इतना ख्याल रखते हो। संगत जी, कल की बात, मैं एक शादी में गई। क्या है कि लड़की की शादी का कार्ड आया हुआ था, मैंने तो शुक्रवार किया हुआ था, व्रत कर रखा था। मैं अब लड़की की शादी में कन्यादान तो देना होता ही है। मैं चली गई बच्चे के साथ बाइक पर बैठ के। हालांकि देवर लगता है, बेटे समान है, मैं अपने बेटे की तरह मानती, क्योंकि बच्चों के बराबर के हैं लगभग। और जैसे ही मैंने शादी वाले घर में एंट्री करने वाली थी कि थोड़ी कुछ दूरी पर ही एक खड्डा आया। बाइक से जा रहे थे, एक खड्डा आया रोड पर और बाइक इतनी जोर से गिरी तो नहीं, मतलब झटका लगा। हम 3 जने बैठे थे बाइक पर और हमारा बैलेंस बिगड़ा। लेकिन शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लेकिन हम में से कोई भी नहीं गिरा। और सबसे पीछे मैं बैठी थी और मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे कि भाई गिर ही जाऊंगी। जय गुरु जी। मुझे तो ऐसा पक्का यही फील हुआ था। फिर मेरे मन में यही हुआ कि गुरु जी साथ है, गुरु जी ने बचा लिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं कह भी रही थी कि मुझे गिरने नहीं देंगे, मैं बच सकती हूँ, पर मेरे साथ कुछ भी मेरा बिगड़ नहीं सकता। मैं तभी हंसने लगी कि मैं घबरा तो गई थी, लेकिन जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने कहा कि हमें हमें कुछ नहीं होगा, हम गिर नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ मेरे भोलेनाथ गुरु जी महाराज थे, साथ ही रहते हैं। वो पूरा ख्याल रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम संग रहते हैं और अपनी किसी ना किसी रूप में ब्लेसिंग देते हैं। आज ही की बात, सवेरे मैं उठी, गुरु जी आए, उन्होंने मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्रवार को भी मोर के रूप में दर्शन दिए पूर्व दिशा में। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज भी मोर के रूप में दर्शन दिए। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दूसरी मंजिल पर ओनर पर बैठा था। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संध्या के समय नंदी महाराज, गुरुजी ने महाराज बोले कि गुरुजी महाराज कहते हैं बेटी, तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा रखा है। और हाँ, ये बात सही है, नंदी महाराज जी संध्या वेले हमारे गेट के पास ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि साक्षात कि आओ कौन आता है, आओ कौन सी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश करती है। वो तो बस खड़े रहते हैं और पूरा घर के मोहल्ले के पूरे चक्कर काट लगा के गुरुजी महाराज अनंत लख लख बार शुक्राना, आप सब पर कितनी मेहर कृपा करते हो, सबकी सुरक्षा करते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे परम पिता महादेव का। गुरुजी महाराज से 5 दिन 4 5 कल। और हाँ, संगत जी क्षमा करना, गुरुजी महाराज क्षमा करना, कल शिवरात्रि का पावन दिन है, महा उत्सव है। मेरे भोलेनाथ की महाराज और माँ पार्वती का कि एक विवाह समारोह का पावन दिन है। नंदी पर सज कर भोले शंकर मेरे महादेव पार्वती माँ को, गौरा मैया को ब्याह करने गए। और ये बड़ा ही शुभ दिन है और हम भक्तों के लिए बड़ा ही पावन और सुंदर दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही पावन दिन है और सबके मन में बड़ा हर्षोल्लास है। महादेव की के लिए सब प्रसन्न है, सब उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। आज कुछ दिनों से कुछ ही दिन बाकी हैं, आज 7 दिन बाकी हैं, आज 5 दिन बाकी हैं, आज 6 दिन बाकी हैं। और कि तेरा काम होने वाला है, तेरे काम बनने वाले हैं। और बस आज आज ये मैसेज आ रहा है कि एक ही दिन बाकी है। गुरुजी महाराज फिर से ये भी वार्निंग आ रही है कि आप गलती मत करना, वरना तो इसी तरह परेशान होती रहेगी। गुरुजी महाराज गलती मत होने देना, आप अंग संग साथ हो, आप हाथ पकड़कर सभी कार्य करवाना ताकि भूल से भी कोई भूल ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आज
आपके बेटे का जन्मदिन है 14 फरवरी यानी 77। ये आप ही की ब्लेसिंग है। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरु जी महाराज। आज बेटे का जन्मदिन है। मैंने मेरे बेटा जो भी नाश्ता लेके आया मैंने उसमें से आपके नाम का भोग रख दिया है। पिताजी महाराज प्लीज 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज स्वीकार करना, ब्लेस कर देना प्लीज। और बेटे पर अपनी बेटे को आशीर्वाद देना, वो सदैव प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसके का जो भी कार्य करे उसमें बरकत मिले, आपकी मेहर हो गुरु जी महाराज। और गलत कार्य न करे, किसी कोई भी गलत संगति में ना फंसे। आप ही देख लेना गुरु जी महाराज, रक्षा करना और सही मार्ग पर चलाना बच्चों को, गलती से भी गलत रास्ते न जाने देना। यही हम अरदास करते हैं। पिताजी महाराज उन्हें सदैव प्रसन्न और खुश रखना, में बच्चे फले फूले और खुशहाल रहे। जो भी नकारात्मकता इसमें घिरे लोग जो पीछे लगे हुए हैं, बेवजह सताने को अलग अलग षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें आप ही देख लेना मेरे महाराज भोलेनाथ, आप ही देख लेना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये घर के आसपास मंडराते रहते हैं, शमशान की से राख ला कर डाल जाते हैं। गुरु जी महाराज रक्षा करना ऐसे गंदे विचारों के लोगों से कि ये क्या चाहते हैं। बस ये है कि आप हो ना साथ, तो वो चाहे कितनी बार ही घेर के जाओ, कुछ भी करो, लेकिन गुरु जी महाराज साथ है। वहाँ किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितना ही कोशिश कर ले। हमारे पूज्य पिताजी महाराज हमारे साथ है। माता रानी का हमारे सर पर हाथ है। फिर मेरे माता पिता का जब तक हमारे सर पर हाथ है, हमारा बाल न बांका होए। गुरु जी महाराज हमारा बाल न बांका होए। गुरु जी महाराज मैं नहीं जानती कौन से तूफान की आप चेतावनी दे रहे हो, मैं नहीं जानती। आप महाशिव के रूप में हमारे साथ हो गुरु जी महाराज। भोलेनाथ हमारे साथ है तो कोई भी तूफान हमारे जीवन में नहीं आ सकता। आप रक्षा करने के लिए सदैव हो। मैं तो नहीं जानती, आप हमारे साथ हो और आप हमारे कर्म कटवा रहे हो। मुश्किलें आती हैं लेकिन कैसे निकलती है पता नहीं चलता। गुरु जी महाराज लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बच्चों पर अपनी मेहर कृपा बनाए रखना, उनकी मेहनत को अपनी ब्लेसिंग से अर्श फर्श से अर्श तक ले जाना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरी मैया, शुक्राना मेरी माता रानी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सभी कार्य बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कल से मेरे सारे बंधन खुल जाएंगे। मेरे भोले बाबा की शरण में लेके जाना गुरु जी महाराज। गलती से भी गलती ना कर सकूं, आप हाथ पकड़ कर पूजा करवाना। मन को और जीवा को कंट्रोल आप ही रखना गुरु जी महाराज। पता नहीं बहुत खाने भूख लगती है, बहुत खाने लग गई हूँ। जो मिलता है ठंडा हो ताज़ा हो ऐसे भी हो, समय पर मिल जाता है खा लेती हूँ। वेट अजीब सा लग रहा है। गुरु जी महाराज प्लीज़ मेरा वेट ना बढ़े, मेरा वेट ना बढ़े, प्लीज़ 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 गुरु जी महाराज कृपा करे, दया करे, मेहर करे। बच्चों के अंग संग रहना गुरु जी महाराज। आपका लख लख बार शुक्राना। आप बहुत कृपा करते हो, आप बहुत साथ देते हो, आप बहुत प्यार करते हो।
हर पल का, हर क्षण का, हर दिन का, हर समय का, एक एक क्षण का आपका लख लख बार शुक्राना। आपने खुशियाँ दी उसका भी शुक्राना, आपने कर्म कटवाए उसका भी शुक्राना, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। गुरु जी ऐसी बना दो, ऐसी मेहर कर दो कि मैं आपकी रजा में ही राजी रहना चाहती हूँ। हे मेरे परम पिता महादेव, हे मेरे गुरु जी महाराज, हे मेरी माता रानी, आपकी रजा में राजी रखना सदैव। आपके पावन चरणों में ये हाजिर स्वीकार करना, गलती शलती माफ कर देना। हे मेरे पितृदेव, हे मेरी कुलदेवी माता पिता, हे मेरी कुलदेवी मैया, हे मेरे गुरुदेव देवताओं, वो सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ और सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। मेरे को पर सदैव अपनी सुरक्षा बनाए रखना, मेरे परिवार पर सदैव अपनी सुरक्षा बनाए रखना, अंग संग साथ रहना। हे मेरे कुल देवी देवताओं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। और मैं उन जीवों से भी मैं माफ़ी मांगती जिन्हें मैंने जिनकी जिंदगी, जिनको गुरु जी ने हमें दिया था और मैंने रोका उन्हें, यानी कि अबॉर्शन में दवाई लेकर उन्हें इस जीवन नहीं क्षमा कर देना पिताजी महाराज। उन जीवों से, उन आत्माओं से माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर देना और अपने बहन भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी मजबूरी समझो, मेरी लाचारी थी उस समय, मैं इन दो को नहीं पाल सकने में असमर्थ थी, इस कारण मैंने ऐसा किया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और मेरे कुल देवी देवताओं, अगर मैंने आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पितृदेवों से भी माफ़ी चाहती हूँ, सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज आप भी मुझे क्षमा कर देना। हे माता रानी, हे गुरुजी महाराज, जाने अनजाने में कोई भी गलती सलती हो गई हो, होती रहती है, रोज होती है, हम तो नादान बच्चे हैं आपके, गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन आप हमें बहुत प्यार करते हो और हमारी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हो पल में ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माता रानी का, शुक्राना 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 शुक्राना। बच्चे पर अपनी मेहर कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद देना, उन्हें गिफ्ट में आपका आशीर्वाद चाहिए, उनका सिर पर सदैव अपना हाथ रखना गुरु जी महाराज, सदैव उसके ना दुश्मनों से बचाए रखना, जो बेवजह दुश्मन बने हैं। हमने कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते, लेकिन बेवजह अंदर घुस के, मन में घुस के, प्रेम जता के नीचे से जड़ काटते हैं मतलब अंदर घुस के प्रेम जता के फिर छल करते हैं। ऐसे लोगों से हे मेरे महादेव, बच्चों को भी बचाना और हमें भी बचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माता रानी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शाम को एक मैसेज आया था संगत जी, मुझे उतनी अच्छी तरह से पंजाबी तो नहीं आती है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, बेटी जो कुछ भी तेरे मतलब तुझ पे या तेरे पे कोई भी स्यापा कर रहा है, तो उन सबको तो आज जवाब देने का दिन है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी। मैंने तो छोड़ भी दिया है कि मेरे पीछे कौन लगा है कौन नहीं, क्योंकि गुरु महाराज मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ और आपने अपने चरणों में हमें अपनी स्थान दी है। हमें आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले तो आपने अपनी चरण मतलब कमल चरणों में हमें और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को मेरे गुरु महाराज आपने जगह दी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। ये जो जगह आपने दी है हे मेरे गुरु महाराज, ये हमेशा ही आपका
ये चरण कमल हमारे सर के ऊपर हमेशा ताज बन के रहे। मैं यही चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज, आपके बच्चों के ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरे मायके वालों, सब मेरे घर परिवार सबके ऊपर आपके चरण कमल हमारे सिर पे ताज बन के रहे। मैं यही चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज। इससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती गुरु महाराज कि आपने अपना हाथ हमारे और अपने चरण कमल हमारे सर के ऊपर रख दिया है। इससे बड़ी मतलब खुशी और क्या, शुक्राना और क्या चीज़ की करूँ मैं मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी, आपके जो भी मैसेज आते हैं मैं पढ़ती हूँ। कोई मैसेज तो मुझे जब भी टेंशन होती है उसके तुरंत बाद आती है, तो मैं कहती हूँ इतनी जल्दी कौन मतलब समझता है, इतनी जल्दी कौन जवाब देता है जितनी जल्दी आप देते हो मेरे गुरु महाराज। तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरु जी। आप भी जानते हो इसमें मेरी कोई छल कपट नहीं है मेरे गुरु जी। मैं जो भी कहती हूँ अपनी आत्मा से कहती हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग करना ठीक से नहीं आता है संगत जी। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी कहते हैं शेयर कर दे, तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे शेयर कर देती हूँ गुरु संगत जी। और मैं गुरुजी की जितनी भी मैसेज पढ़ती हूँ, बोलते हैं अब तेरा रुका हुआ सारा काम बनेगा। और कल तो मतलब गुरुजी से बोल रहे थे कि तू रोया ना कर, तू रो दिए फिर से, मैं बैठा हूँ ना तेरे नाल, तो रोंदी किस लिए है। इतना मतलब मन भारी हो गया संगत जी गुरुजी के मैसेज पढ़ने के बाद में, और मन भारी हो गया और आँखों से आंसू बहने लगे कि मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, आप ही का तो सहारा है गुरुजी, आपके बिना और कौन है हमारा, बताइए। हे मेरे गुरु महाराज, जो भी आप आस भरोसा के जो भी आप वचन हमारे लिए देते हो हे गुरु महाराज, मैसेज देते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था अपनी आँखों में जल प्रसाद डालना, तेरी आंखें थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है। मुझे पता है गुरुजी, मुझे चश्मे बहुत पहले से लगे हैं, लेकिन मेरे चश्मा का ना संगत जी मेरे पति अंकल पहनते थे तो उसका एक डंडा टूट गया है। हमेशा कहती हूँ कि बाज़ार जाऊँगी बनाऊँगी, तो कभी पैसे की ये होती है, कभी क्या होता है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उस दिन एक दिन जल प्रसाद आँखों में लगाया, तो बोलते हैं ना गुरुजी की चंदन टीका और जल प्रसाद में तो मैजिक है। गुरुजी की जल प्रसाद आँखों में लगाइए संगत जी, जिनकी भी आंखें धुंधली हो जाती हुई है, बहुत साफ दिखने लगती है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है। हे मेरे गुरु महाराज, सारे संगत की आंखें ब्लेस करें, सारे संगत को हेल्थ ब्लेस करें। आपका जल प्रसाद, महाप्रसाद, आपकी चंदन टीका, सब चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे घुटने की हड्डी मतलब मैंने हड्डी जो होता है ना संगत जी, वो मतलब घिस गई है, और डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा ये मत करो। मुझे आलती पालती करके बैठने में बहुत तकलीफ़ होती थी, तो मैंने गुरुजी का जब भी पूजा करती थी, मैं गुरुजी के चंदन तिलक सबसे पहले गुरुजी को लगाने के बाद में कल का जो भी होता था टीका वो अपने माथे पे लगाती थी, फिर मैं अपने घुटने पे जय गुरुजी बोल के लगाती थी, और अपने हाथ के कोने में भी लगाती हूँ। तो मुझे अभी बैठने उठने में तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती है संगत जी। मतलब जादू है गुरुजी की चंदन तिलक में, गुरुजी की जल प्रसाद तो जादू है गुरुजी, जादू है। मैं उनकी जल प्रसाद तो हर रोज़ पीती भी हूँ, घर पे सारे घर पे छिड़कती भी हूँ, और उसी जल प्रसाद से चाय भी बना के देती हूँ हस्बैंड अंकल को, सासू माँ को। फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी के रूप में भी पीती हूँ, और वही जल प्रसाद फिर मैं गर्म करके भी पीती हूँ। जादू है संगत जी, कसम से जादू है। मतलब मेरे गुरु महाराज तो मतलब मेरिकल से भी मेरिकल है। बस यही, मुझे तो उतना सत्संग करना ही नहीं आता है संगत जी। बस जो भी मेरे मन में आ रहा है, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, आप जानते हो अभी मैं किस समस्या से जूझ रही हूँ। गुरुजी, आपको पता है आपकी ये बेटी किस समस्या से जूझ रही है। कर्ज बहुत चढ़ गए हैं हमारे ऊपर संगत जी। गुरुजी जानते हैं बहुत कर्ज चढ़ गए हैं, बच्चे भी परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, पति अंकल परेशान है। पति अंकल ने 2-4 ऐसे गलत काम किए हैं, अब सारी ज़िंदगी उनको तो भुगतना ही है, और शायद उनकी से जुड़े रहने के लिए हमें भी भुगतना पड़ रहा है। क्या करूँ संगत जी, अब
उम्र भी हो गई है, 42 क्रॉस हो जाने के बाद में बच्चों के अपने लिए सोचने से ज़्यादा माँ बाप बच्चों के लिए सोचते हैं ना संगत जी। मेरी भी वही हाल है कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचती हूँ कि नहीं, मेरी तो ज़िंदगी आधी चली गई है, अब जो भी ज़िंदगी है मैं गुरुजी की सेवा और गुरुजी की जल प्रसाद चंदन टीका से ही मेरी ज़िंदगी तो मतलब कट जाएगी। बस बच्चों की फ्यूचर ख़राब ना हो, बस इसीलिए संगत जी बच्चों को मतलब बोलती हूँ ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें करना है। बस इन सब से दूर। 2 बच्चे तो बाहर हैं संगत जी, गुरुजी की कृपा से अच्छे हैं और गुरुजी उनके अंग संग भी हैं। गुरुजी हमेशा उनकी ख्याल रखते हैं, गुरुजी उनके साथ रहते हैं। कोई भी तकलीफ़ होती है तो गुरुजी तुरंत उनके साथ ही, उनके अंग संग ही रहते हैं गुरुजी। मतलब मिरेकल होता है बच्चों के साथ भी संगत जी, ये मेरा पर्सनल अनुभव है संगत जी। तो संगत जी यही है कि मतलब गुरुजी को पता है कि मुझे क्या अभी मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं संगत जी। शायद हमारे ऊपर जो भी कर्ज और चढ़ गए हैं और उस कर्ज को उतारने के लिए हम अब जो भी करने लगे हैं, अगर वो काम ठीक से सही से हो जाए तो गुरुजी तो कहते हैं ढिंडोरा मत पीट, काम होने के बाद में अपने आप सब कुछ बोल देना, सबको दिखाई पड़ जाएगा, सुनाई भी पड़ जाएगा। तो संगत जी यही है कि कुछ ढिंडोरा पिटना नहीं चाहती। गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, मैं तेरी इज्जत पे कुछ आँच नहीं आने दूंगा, मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर, यही बोलते हैं संगत जी। और मन में एक सुकून सा आ जाता है और दिमाग आराम से पीस मतलब शांत हो जाता है संगत जी, टेंशन से मुक्त एकदम। तो गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो भी आपने मैसेज दिए हैं, जो भी आपने अंग संग रह के बच्चों के हमारे ऊपर जो भी किए मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मेरी सत्संग भी लंबी हो रही है संगत जी। तो गुरु महाराज, मैं आज का सत्संग संगत जी यहीं पे विराम करती हूँ। मैं कल फिर सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।